اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ، اور درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے کیسے حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی اور اب کون کون سی ترامیم ہونے جا رہی ہیں، اور کس طریقے سے اللہ پاک نے، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کرپٹ ترین ججوں کو، ان ٹراؤٹ ججوں کو، ان عالمی طاقتوں کے سہولت کار ججوں کو منہ پہ جوتا مارا ہے، ان کے منہ کالے کیے ہیں، جو کہ بغیر اپلیکیشن ہی نہیں تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے درخواست ہی نہیں دی تھی کہ سیٹیں ہمیں دی جائیں، درخواست دینے والی تھی سنی اتحاد کونسل، اور سیٹیں کس کو انہوں نے دی تھی؟ پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی اپلیکیشن ہی نہیں تھی، اس پٹیشنر ہی نہیں تھی، نہ ہی اس نے کوئی اپیل کی ہوئی تھی، نہ ہی انہوں نے سیٹیں مانگی تھی۔ اب کھل کے یہاں پہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ کرپٹ جج تھے۔ اس پہ کھل کے بات کروں گا، اور کس طریقے سے کون کون سی ترامیم آ رہی ہیں اس پہ بات کروں گا، اور اسمبلی کی مدت 5 سال سے بڑھا کے کتنی کی جا رہی ہے اس پہ بات کروں گا، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں کتنی بار توسیع کی جا سکتی ہے اس پہ بات کروں گا، اور اس وقت پاک آرمی کو اللہ نے جو عزت دی، شہرت دی ہے، اس پہ بات کروں گا، اور سب سے پہلے اب آپ آ جائیں جناب کہ میری بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ میری آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور کل جن لوگوں نے کیا ہے سبسکرائب وہ واپس ان سبسکرائب ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ کون سی غلطی کی انہوں نے بغیر ویڈیو دیکھے ہی سبسکرائب کر دیا تھا۔ اس کا پراپر طریقہ ہوتا ہے، پھر ان سبسکرائب نہیں ہوتا ہے بندہ، پھر ان کا سسٹم ان سبسکرائب یوٹیوب والوں کا نہیں کرتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے 5 منٹ یا 2-3 منٹ کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر لائک کریں، کامنٹس کریں، اور پھر سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں۔ یہ ہے طریقہ، اس سے پھر ان سبسکرائب نہیں ہوتا ہے بندہ۔ اور گروپوں کو، ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں، ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھ لیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی آ جائیں اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، ان کرپٹ اور عالمی طاقتوں کے ایجنٹ اور سہولت کار ججوں کا منہ کالا اللہ نے کر دیا ہے، اور کس طریقے سے یہ سپریم کورٹ میں ذلیل ہوئے ہیں۔ ان کی نیت ہی خراب تھی، ملک سے مخلص نہیں تھے، لیکن وہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دینا چاہے پوری دنیا بھی مل کے اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ ابھی تازہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے نا، پی ٹی آئی نے اور عالمی میڈیا نے کتنی کوشش کی حافظ سید عاصم منیر اور فوج کو بدنام کرنے کی، بے عزت کرنے کی، لیکن اتنی ہی اللہ نے ان کو عزت دے دی، اتنا ہی ان کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
किसी इंसान के पास नहीं है, किसी बंदे के पास भी नहीं है, किसी दुनिया के मुल्क के पास नहीं है। और अब तरतीब ये हो गई है, वो सीटें जो थी ही नहीं पीटीआई की, क्योंकि इसका प्रॉपर एक तरीकाकार है कि इलेक्शन लड़ने से पहले इलेक्शन कमिश्नर को एक दरख्वास्त, एक लिस्ट देनी पड़ती है कि भाई हम इलेक्शन जीत गए, सीटें जीत गए, तो ये हमारे उम्मीदवार होंगे जो कि खुसूसी सीटों के हकदार होंगे। इन्होंने कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी, क्योंकि ये इलेक्शन पीटीआई के नाम पे बल्ले पे लड़े ही नहीं थे। ये लड़े थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। किसी का गाजर था, किसी का मूली था, किसी का बैंगन था, जो जो जिसके नसीब में था वही उसी पे लड़े हैं। अब किस तरीके से जीते हैं? डरा धमका के, पैसे दे के, केपीके में धांधली करके जीते हैं। इनके तमाम अभी भी जितने भी अभी गिनती हुई है, सब में इनके फॉर्म 45 जाली साबित हुए हैं। ये कह रहे हैं ना फॉर्म 47 जाली है, नहीं, हरगिज नहीं, फॉर्म 45 जाली है। ना हो, मैं चैलेंज करता हूं, पकड़े भी गए हैं काफी। वो क्या नाम है, मुल्तान से वो पकड़ी गई है, इनका सदर है जो साबका सदर, क्या नाम है, वो जाली डब्बा पीर, नाम उसका नहीं जहन में अभी आ रहा है, तो वो मुल्तान वाला जाली पीर, उसकी बेटी का फॉर्म 45 जाली साबित हो गया। जितने भी फॉर्म 45 उसने जमा करवाए थे, सब के सब तमाम पोलिंग स्टेशनों के जाली साबित हुए हैं। उस पर केस मुकदमा भी दर्ज हो गया है। और इसी तरह पूरे मुल्क से इन्होंने जो अमला था उसको पैसे दे के खरीदा, और केपीके में उनको पैसे दिए, जो नहीं बिके उनको डरा धमका के उनके बच्चों को उठा लिया, उनकी बीवियों को उठा लिया, मजबूर करके, बेबस करके उनसे ठप्पे लगवाए गए। वो फॉर्म 45 पे दस्तखत लिए गए, जाली फॉर्म 45 पे। और वो अब देखें अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। जब इंसान अल्लाह की पकड़ में आता है ना, तो उसका सीधा काम भी उल्टा हो जाता है। अब वो जो मरदूद था, ये वाकंट वाला सरवर खान, जिस मरदूद अल्लाह उसकी नस्लों को भी तबाह करे, उसने जाली बयान दिया कौमी असम्बली में इमरान खान के कहने पे। और इमरान खान के दोस्त यहूदी को इसराइल का, ये इसराइल का एजेंट है इमरान खान, इसराइल का ही वो बंदा था जिसकी एयरलाइन थी, ये नाम अभी जहन में नहीं आ रहा है, उसको फायदा देने के लिए पीआईए को बैन किया गया, पाबंदी लगवाई गई एक जाली बयान के थ्रू के। पीआईए के जितने भी पायलट हैं सबके लाइसेंस जाली हैं, उनकी डिग्रियां भी जाली हैं। ये बयान पूरी दुनिया में थरथली मच गई। जो पीआईए से रिटायर्ड होके दूसरी एयरलाइन चला रहे थे उनको भी खुडे लाइन लगा दिया गया, पीआईए पे पाबंदियां लग गई। अभी कुछ मुल्कों ने हटाई हैं, कुछ ने अभी भी नहीं हटाई हैं। ये इस तरीके से इन एजेंटों ने, इसराइल के एजेंटों ने, इनकी नस्लों को भी अल्लाह तबाह करे, आमीन, कि इन्होंने मुल्क को तबाह किया है। ये मिशन ही लेके आए थे, यही मिशन था इनका कि मुल्क को तबाह करना है। तो अभी देखें, एक फैसले आलमी ताकतें करती हैं, एक फैसले उनके एजेंट करते हैं, एक फैसले ऊपर होते हैं अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक के पास, और वही होता है जो अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक चाहता है। अब अल्लाह ने इनको जलील करना था, देखे कैसे जलील हुए हैं। इनके वो फॉर्म 45 भी पकड़े गए हैं, जाली साबित हो गए हैं। इनकी वो सीटें जो इनकी थी ही नहीं, इनको दी थी उन करप्ट जजों ने, उन आलमी ताकतों के सहूलतकार जजों ने। उन अब मैं क्या कहूँ, बस अल्लाह उनको हिदायत दे। अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो उन तमाम जजों को अल्लाह ताला दुनिया में भी निशान इबरत बनाए और आखिरत में भी, आमीन। तो अब जो फैसला आया ना, अब जो जज आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो है ईमानदार जज, ना बिकने वाले ना झुकने वाले। उन्होंने आके जो हक था, जो सच था, उन्होंने कहा, इनके वकीलों को उन्होंने कहा कि भाई साबित करो कि तुम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी नहीं
एक लिस्ट ही नहीं जमा करवाई, तो तुम्हें कैसे इलेक्शन कमीशन दरखास्तें सीटें दे दे। इलेक्शन कमिश्नर को मशकूक बनाया गया और अदारे को, एक सरकारी इदारा अफवाज पाकिस्तान, उनको बदनाम किया गया कि उन्होंने फ्रॉड किया है। लेकिन देखें अल्लाह ने इनको कैसे जलील किया है। अभी मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये वीडियो संभाल के रख लें, मैं लिख के देने को तैयार हूं कि चंद महीनों के अंदर अंदर पीटीआई का नाम और निशान मिट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कभी कोई पीटीआई थी भी या नहीं। और इमरान खान का दूर दूर तक बिल्कुल चांस कोई नहीं है बाहर आने का। ये उनके ही वकील ने बता दिया, वो बंजोसा साहब ने, कि उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि ये एक फ्रॉड पार्टी है, ये आलमी ताकतों के एजेंट हैं, ये यहूदियों के एजेंट हैं, ये इनका काम ही था मुल्क तबाह करना। इनको 3 मिशन दे के भेजा गया था। नंबर 1 पे मुल्क को तबाह करना, नंबर 2 पे इसराइल को तस्लीम करना, नंबर 3 पे एटमी सलाहियत को ख़त्म करना, नंबर 4 पे ये चीन के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब करना। तो अब आप आ जाएं जनाब, देखें हर मुल्क का अपना मफाद होता है। ये कौम यूथड़ कह रही है ना जी कि हम फ़लस्तीनियों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम भाई फ़लस्तीनी खुद इतनी बड़ी इसराइल से 100 गुना ज़्यादा पावर में है, 100 गुना ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। वो ले ना असला हमसे, असला लें, हम उनको देने को तैयार हो। हम दूसरों की जंग जाके क्यों लड़ें? पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी है, कौन सा मुल्क आया था हमारी मदद को? अभी ये जो ये इंडिया के साथ जंग हुई है, इसमें कौन सा मुल्क आया था हमारे साथ लड़ने को, जो हम जाके लड़ें दूसरों की जंग? सबसे बड़ा वो बना हुआ था ना तुर्की का सदर तैयब अर्दोगान, आलम इस्लाम का ठेकेदार, उसने भी इसराइल के साथ ताल्लुक रखे हुए हैं, तजारत कर रहा है इसराइल के साथ। इससे आप अंदाजा कर रहे हैं। लेकिन ना इंशाअल्लाह पाकिस्तान उसको तस्लीम करेगा और ना ही उसके साथ कभी तजारत करेगा। क्यों? क्योंकि उसको तबाह करने के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान को वजूद में लाया है। पाकिस्तान के हाथों ही इंशाअल्लाह इसराइल तबाह होगा। और वाज़े तौर पे हदीस मौजूद है कि गज़वा हिंद हिंदुस्तान से स्टार्ट होगा और उसकी क़यादत एक सैयदज़ादा कर रहा होगा। आगे आप खुद समझदार हैं सैयदज़ादा कौन है, जो कि सुच्चा खरा सैयद है, अली और फातिमा की औलाद है, शाह शम्स तबरेज़ की नस्ल है, आफत सैयद आसम मनीर साहब। तो अब देखें, अब तरतीब ये हो गई है कि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई है। KPK में भी इनकी तादाद, इनकी सीटों की तादाद बढ़ गई है। KPK में भी इंशाअल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर ही नून लीग की हुकूमत बन जाएगी, ताकि KPK सूबा संभल सके। और उसके बाद कौमी असम्बली में अब बहुत सारी आइनी तरामीम लाई जाएंगी। अब हुकूमत के पास इतना पावरफुल इख्तियारात आ गए ना कि हुकूमत चाहे तो पूरे का पूरा आइन ही तब्दील करके नया आइन ले आई, या उसमें जो जो तरामीम करना चाहती है आसानी के साथ एक दिन में कर सकती है। कोई उस पर पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किसी के ये मौलाना के ब्लैकमेलिंग से भी बच गई है। ये भी बड़ा गद्दार है मौलाना जो है, इसको भी आप सही बंदा ना समझे। ये नहीं है सही बंदा, ये इंतहाई लालची बंदा है। मैं तो किसी से भी नहीं डरता हूँ, मैं डरता हूँ तो अल्लाह से। हाँ, इसके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद 1 नंबर बंदा था, नर बंदा था, खरा सच्चा ईमानदार। औलाद अब गलत निकला है तो इसमें माँ बाप का कसूर तो नहीं होता है ना। तो अब किसी ब्लैकमेलिंग में आए बगैर तरामीम होंगी। अदलिया को से ये इख्तियार ले लिया जाएगा कि जजों को किसने, क्योंकि सरकारी अदारा है ना, वो गवर्नमेंट के मुलाजम है, वो गवर्नमेंट जिसको चाहे किसी भी शहर में तब्दील कर सकती है। ये गुंडे बने हुए थे, ये आसमानी मखलूक थे कि ये करप्शन करें तो कोई
उंगली भी नहीं हो, कोई एक लफ्ज भी बोले तो इन्हें अदालत लग जाती है। और दूसरों को बगैर किसी वजह से करप्शन में पकड़ा, अकामे पे बाहर, करप्शन साबित नहीं हुई, अकामे पे बाहर निकाल के पूरी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया और चलती हुई हुकूमत को घर भेज दिया। ये इनके कारनामे थे। 13-13 साल तक, 20-20 साल, 30-30 साल तक लोग तरस रहे होते हैं, फैसले नहीं करते हैं। ये मरदूद हराम की तनख्वाहें लेके जाते हैं घरों को, एसी वाली गाड़ी में आते हैं, एसी वाले कमरे में बैठते हैं। इनके घर में भी हर कमरे में एसी चल रहा होता है, बंद भी नहीं करते। घर से बाहर जाएंगे एसी चलता हुआ छोड़ के जाएंगे कि भाई कमरे ठंडे रहें, गर्म ना हो जाए। और बिल कौन देंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमारे आप लोगों के सैर सपाटे इनके पूरी दुनिया के होते हैं, टिकट फ्री, एयर टिकट फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, पेट्रोल फ्री, गाड़ियां फ्री, इनके बच्चों की तालीम फ्री, और आराम की तनख्वाहें सदर वज़ीर आज़म से ज्यादा ले रहे हैं, काम एक टके का नहीं कर रहे। अब जो आया है ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में और KPK में, पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि वो कैसा है, लेकिन सिंध में भी ठीक है और बलूचिस्तान में भी ठीक है। KPK का अभी तक मैं डाउट में हूं, कुछ मुकम्मल पता नहीं है कि कौन ईमानदार है या बेईमान है। तो अब इंशाल्लाह फैसले होंगे। अब बाकायदा चीफ जस्टिस खुद आके बैठता है और बाकायदा हाजिरी लगती है जजों की। जिसने नहीं आना होता है घर से ही कॉल कर देते हैं, जी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं, अल्लाह तुम्हें हमेशा के लिए चारपाइयों पे ही डाल दे। ये करप्ट जजों की बात कर रहा हूं, जो लोगों को फैसले नहीं करते हैं। और उसके बाद देखें KPK में भी हुकूमत तब्दील होने जा रही है। वफाक में हुकूमत इतनी मजबूत हो गई है कि वो एक तरमीम ला रही है, आर्मी को मजबूत कर रही है, आर्मी चीफ को मजबूत कर रही है, एयरफोर्स चीफ को, नेवी चीफ को मजबूत कर रही है। उन अदारों के खिलाफ अब जो कौम यूथड़ बात करेगा, जो तौहीन करेगा, बदतमीजी करेगा, उसका पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और उसको कम अज कम नहीं तो 15-20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और उसके पछवाड़े में लाल मिर्चों वाला, दड़ा मिर्च वाला डंडा दे के ना, जिसके ऊपर वो कांटों वाली तार लगी होती है, वो पिछवाड़े से दे के मुंह से बाहर निकाला जाएगा। अब सुन ले, ये जो तौहीन करते हैं ना फौज की या कौमी असम्बली की या सदर वज़ीर आज़म की, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं। मैं अवाम का नुमाइंदा था ना, इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म था, मैंने उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। मेरे व्लॉग चेक कर लें उठा के। तनकीद जरूर किया है, लेकिन एक इखलाक के दायरे में रहते हुए तनकीद जरूर, लेकिन आर्मी पे तनकीद भी नहीं कर सकते हैं आप, एयरफोर्स पे तनकीद नहीं कर सकते हैं, नेवी पे तनकीद नहीं कर सकते हैं। अब कौम यूथड़ कहती है जी के कौन सा फ्री में करते हैं, तनख्वाह नहीं लेते हैं। मैंने एक यूथड़ ने ऐसा ही सवाल किया ना, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यूथड़ साहब, आप जितना वो सैलरी ले रहे हैं ना एक्सपाई, मैं आपको उसका डबल देता हूं, आप एक रात सियाचिन में गुजार के आ जाएं पहाड़ के ऊपर। तुम्हें अगर नानी याद ना आई तो फिर बात करना। उसने मेरे, उसके बाद वो बिल्कुल खामोश, आए बाएं शाएं। ये इतने जलील और ढीठ है, अल्लाह इनको दुनिया में भी तबाह करे और आखिरत में भी तबाह करे। ये वो नस्ल है, गंदी गलीज नस्ल के, किस गंदी नाली के कीड़े हैं ये। इनके दिमाग है ही नहीं है, अक्ल है ही नहीं है, शऊर है ही नहीं है। ये अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, अपने बहन भाइयों को गालियां देते हैं, अपने चाचा, नाना, दादा, दादी सबको गालियां देते हैं जो इमरान के खिलाफ बात करता है। इनका ये ईमान हो गया हुआ है, इनकी इस तरह जहन साजी की गई है। तो इनकी जरूरत नहीं है, ये 1% है। 99% मुल्क के वफादार है नई नस्ल। ये 1% अगर मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह इनको जहन्नम में डाले, दुनिया से ही अल्लाह ताला इनको नेस्तो नाबूद कर दे, ताकि इनको और कादियानियों ने जितना आलम इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, इस्लाम को नुकसान पहुंचाया ना, उतनी किसी ने नहीं पहुंचाया। अल्लाह इन दोनों को दुनिया में भी और आखिरत में भी जलील व ख्वार करे और इनकी नस्लों को भी तबाह करे।
اور اس کے بعد اب دیکھیے کس طریقے سے انشاءاللہ نہ صرف ملک ترقی پہ آ گیا ہے بلکہ تیزی کے ساتھ کارخانے فیکٹریاں لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ اگلے 2 سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ ملک سے بے روزگاری مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، اور IMF کے چنگل سے ہم جب نکلیں گے اسٹیٹ بینک واپس گورنمنٹ آف پاکستان کو مل جائے گا 2 سال بعد انشاءاللہ۔ تو 2 سال بعد بجلی گیس کے بل بھی انتہائی نیچے بلکہ فری ہو جائیں گی بجلی گیس جب سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا، تو کیونکہ اتنی انکم آ جائے گی سی پیک کے تھرو کہ گورنمنٹ کا جتنا سال کا بجٹ ہوتا ہے نا اتنی ایک دن کی انکم ہو جائے گی پاکستان کی سی پیک کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ کیونکہ یہ صرف چائنا پاکستان کا منصوبہ نہیں ہے، اس میں وسطی ایشیائی تمام ریاستیں شامل ہیں، وہ بھی تجارت اسی راستے کے تھرو کریں گی، اسی بندرگاہ سے ہی کریں گی۔ اور بے حساب دبئی کی بندرگاہ بھی میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، بالکل ملیا میٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تو دبئی بھی مخالفت کر رہا تھا، ایران بھی مخالف تھا کہ ایران کی چاہ بہار کی بندرگاہ ملیا میٹ ہو جائے گی، جو اس نے اپنے باپ کو دی ہوئی تھی، اس کو انڈیا کو، انڈیا نے اس کی گانٹ ماری ہے صحیح بنا کے، اس کے تمام سائنسدان مروانے میں انڈیا کا راہ کا تھا، اور راہ اور موساد ایک ہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کے تمام لیڈرشپ، آرمی چیف، ایئر فورس چیف، نیوی چیف کو مروانے میں بھی راہ کا اور موساد کا ہاتھ تھا، دونوں کا۔ تو خدا را اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اور اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دیں۔ نہیں دیں گے تب بھی آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ PTI تو یہ مہینے ڈیڑھ کے اندر اندر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اس کا وجود ہی مٹ جائے گا، اس کے تمام لوگ یا نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے یا پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے قیامت تک، اور اللہ اسرائیل کو اور اسرائیل کے حواریوں کو، ٹرمپ کو اور ٹرمپ کے حواریوں کو تباہ و برباد کرے، اور جتنے بھی لوگ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، جتنے جج کرپٹ جج ہیں اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تباہ و برباد کرے۔ افواج پاکستان کی، حافظ سید اعظم منیر کی، ان کے وفادار ساتھیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کے ایٹمی احساسات کی حفاظت فرمائے، دفاعی احساسات کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کو اللہ قیامت تک قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔